So now we'll moving toward another topic from your spectroscopy, and this is also the very fundamental type of what the spectroscopic technique, which is widely used for the uh, one can say the structural elucidation, and it also play a very important role for finding the structures. So basically, what after this session, you will get some idea regarding to the UV visible spectroscopy. You will learn the basic concept of the usual spectroscopy. Then related to that, we'll moving on to the instrumentation. You deal with that instrumentation. Next to that, you can also after that session, you will get how to identify the groups. Basically, which groups are there particularly in a molecule that are necessary for the absorption of the color. Okay, we can identify the group that is called chromophore as well as exochromes, okay, etc. After that session, you will also able to identify the different types of the electronic transitions within the molecule. And one more important, that is the numerical part in this chapter, that is to find the lambda max, that is the maximum wavelength of some organic molecule. It's example for diene, okay, for the ethanol, and for the aromatic compounds, okay, and lastly some applications toward the polyenes now, and many more examples are there now. So basically what these are the some outcomes after that station. So what does it mean that ultraviolet and one can say UV visible spectroscopy now? So basically what this UV visible spectroscopy is deal with the electronic transitions now, okay. So first of all, what exactly happen in the UV visible spectroscopy? Basically we have sample the solution. We have a solution as a sample, and that is interacted with the UV light. You know that we'll focus on what is UV light. So it is a simple chemistry between your sample, between your sample as a matter with your source, that is called UV light. And when we are going to interact these two, so then it brings the some change now, and it change at electronic levels now. Okay, it change in the what electronic levels, and that change is detected with the help of a detector, and finally you will get the type of the spectrum now, that is called as UV spectrum. Okay, so basically what the molecule changes their electronic energy levels now. Okay, and here mention the word that is HOMO. We will also work on it, what is that HOMO now. So basically UV में क्या होता होगा कि हमारे पास एक सोर्स है जो UV रेडिएशंस का लाइट प्रोवाइड करता है, और हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो उन दोनों की इंटरेक्शन हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं उनमें वो चेंज हो रहा है, और जो भी चेंज होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उधर डिटेक्ट करते हैं, देन वी विल गेट द स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल किसी एलिमेंट में, अगर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं. वन इज कोर, जो अंदर की साइड में होते हैं, और दूसरे को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट में होता है. ये किसमें होता है ऐसा? एलिमेंट में, एटम में. बट जब एलिमेंट एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल बनता है आपका, तो मॉलिक्यूल में भी ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इजीली अवेलेबल होते हैं. जैसे एग्जांपल आपके पास नॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन. तो इसमें सबसे इजीली अवेलेबल कौन सा होता है? नॉन बॉन्डिंग होता है, पाई. फिर अगर हम यूवी रेडिएशन किसी सैंपल पर, तो क्या हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डिंग रहेगा तो पहले नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, है ना. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ये सब कुछ हो रहा है. मॉलिक्यूल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके साथ ये होता है. और यूवी विजिबल में बेसिकली सोर्स कौन है आपका? सोर्स इज व्हाट? यूवी लाइट. जो यूवी लाइट हम किस पे डाल रहे हैं? सैंपल पे डाल रहे हैं. और जिसकी वजह से सैंपल में क्या हो रहा है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज हो रहा है. ठीक है, एंड दैट चेंज जो है वो हमको डिटेक्ट करना है. ओके, अब यहाँ पे आपके सामने सीधा सीधा एक पिक्चर दिया है जिसमें एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम निकाली है. ओके, अब हम क्या करते हैं बेसिकली कि दो एनर्जी लेवल आपके पास प्रेजेंट है. एक मान लेते हैं कि एक ओलेफिन आपके पास है. दिस इज व्हाट वन कैन से द एनर्जी. ओके, एनर्जी है. और मान लेते हैं कि ये जो है, इसको हम बोलेंगे E1, इसको हम बोलेंगे E2. अगर किसी कंपाउंड में लेट्स एग्जांपल इथीन लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन निकालता हूं. अब हमारे पास ऑलरेडी डेल E आ गया, मतलब T2 माइनस C1, और इज इक्वल टू क्या होता है? H न्यू. दो ऑल ऑफ यू नो दैट. सो हम क्या करते हैं, उतना ही रेडिएशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. तो रेडिएशन कहां से आ रहा है आपका? UV से. फिर क्या होता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड देन एक्साइट टू द एनर्जी लेवल. सो क्या हुआ है आपका कि जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस लेवल को बोला जाता है होमो. होमो का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज ए हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जहां पे एनर्जी ज्यादा है बट इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? लो अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो जब यूवी इंटरेक्शन जब की जाती है तब इलेक्ट्रॉन आपका होमो से लूमो में जाता है. होमो का मतलब क्या होता है कि जिसकी एनर्जी कम हो बट उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. लूमो मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. So such a type of what electronic excitation, that phenomena is going to called as a electronic excitation.
और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में होता है, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एंड दैट इज हैपन व्हेन वी इंटरेक्टेड विद द यूवी रेडिएशन, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, होमो में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लूमो में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या था आपका, दिस इज व्हाट द ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट से विद इन द मॉलिक्यूल आपका होता है, ठीक है। सो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फिर अब हमको क्या करना है, इसका सोर्स पता करना है। यूवी बेसिकली क्या होता है, यूवी जो है इसमें दो रीजन है, एक होता है यूवी नियर यूवी और फार यूवी। नियर का मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ क्वार्ट्ज, और फार का मतलब होता है दैट इज वैक्यूम, ओके। और इनकी वेवलेंथ कितनी दी है, देखो इनकी वेवलेंथ कितनी है, हम जनरली क्या बोलते हैं 400 से लेकर 800 नैनोमीटर जो है ये पूरा किसका होता है, यूवी विजिबल का होता है। किसका, 400 टू 800 नैनोमीटर जो है ये पूरा कौन है, यूवी विजिबल। इसमें से क्या है, देखो इसमें से सबसे पहले जाएगा आपका फार यूवी, जो बेसिकली वैक्यूम होता है 10 से 100 नैनोमीटर। उसके बाद नियर जो है वो 200 से 400 है, जिसको आपने अल्ट्रावायलेट बोला है, ठीक है। और 400 से लेके आगे, मतलब 400 से कितना 800 तक जो है ये कौन होता है आपका, विजिबल होता है। So basically that UV comprises the two region, ultraviolet that is 200 to 400 and visible that is what 800 to और 400 to 800 ना। अब इसके लिए सोर्स चाहिए हमको, हमको सोर्स कौन सा चाहिए, फिर हमारे पास दो अलग अलग है, यूवी और विजिबल। यूवी के लिए हम यूज करते हैं ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन लैम्प, जो कितनी एनर्जी देता है आपको, और कितनी एनर्जी देता है आपको, 200 से 400 वाली एनर्जी आपको मिलेगी कहां से, अगर हम यूवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम सोर्स यूज करते हैं ड्यूटेरियम या तो फिर हाइड्रोजन लैम्प। लेकिन अगर हमको विजिबल अगर चाहिए तो सिंपल हमारे पास जो पहले बल्ब जो थे आपके येलो कलर वाले टंगस्टन बल्ब या हेलोजन लैम्प, ये बेसिकली 400 से 800 क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। 400 से 800 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है वो इतनी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सो सैंपल को हम इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में, यूवी, ओके। नो सैंपल इज देयर, सैंपल इज गोइंग टू बी इंटरेक्टेड विद योर सोर्स दैट इज कॉल्ड द यूवी लाइट, ओके। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, आपने उसको ड्यूटेरियम लैम्प लिया, हाइड्रोजन लैम्प लिया है मतलब अल्ट्रावायलेट हो गया, या विजिबल लिया है तो इसका मतलब टंगस्टन लैम्प लेना पड़ेगा। और जैसे वो लाइट प्रोवाइड करते हैं सो दैट विल बी द रिस्पांसिबल फॉर द एक्साइटेशन। अब ये किस टाइप का ट्रांजिशन हो गया, फ्रॉम फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, मतलब ये अपवर्ड ट्रांजिशन हो गया। कैसा हो गया ये, अपवर्ड टाइप का, और एब्जॉर्ब करके गया है। इसका मतलब दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लासिफाई किया है, बराबर है, वेदर इट इज एब्जॉर्प्शन इमिशन, वेदर इट इज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। हमने पूरा सैंपल लिया है, बल्क, ऐसा पूरा हमने सैंपल लिया है। तो सैंपल मतलब क्या हो गया, बल्क हो गया, ठीक है। बल्क जो है ये बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इट इज अ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड बेसिकली इसको और एक हम इसको दे सकते हैं कि अगर हमारा सैंपल रिकवर करना हो गया तो हम वापस ले सकते हैं उसको, रिकवर होता है हमारा सैंपल, इसलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव भी है, ठीक है। अगर आपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा तो आपको समझ में आएगा कि क्यूएट होती है, क्यूएट में हम सैंपल डालते हैं, देन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे उसका पहले लैम्बडा मैक्स निकल जाता है, एंड देन बाकी के सारे रीडिंग्स हम अलग अलग इसमें ले सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की रीडिंग हम वहाँ पे लेते हैं, ओके। सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल बिहाइंड द टेक्निक। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड है हमारे पास जिनको बहुत स्पेसिफिक बोला जाता है इसमें। सो यूवी लाइट जो है आपका मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। मोस्टली क्या बोला यहाँ पे, लूजली बॉन्डेड, यानी कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इनमें से नॉन बॉन्डिंग सबसे लूजली हेल्ड होते हैं, फिर पाई और फिर सिग्मा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे पेड इलेक्ट्रॉन है, जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पेड होते हैं। सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव देयर पेड इलेक्ट्रॉन। पेड का मतलब ऑलवेज दो रहेंगे वो, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। सो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन हमको एक्साइट करना होता है जब हम यूवी लाइट की रिएक्शन करते हैं उनके साथ। सो बेसिकली व्हाट हैपन हियर, द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल, या फिर लोअर टू हायर लेवल, ठीक है। और ऐसे ट्रांजिशन जो है ये क्या, हमको क्या मिलता है इनसे, पता इनसे हमको पता चलता है वी कैन अंडरस्टैंड द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और पर्टिकुलर किस टाइप का ट्रांजिशन हो रहा है ये हमको वहां पे पता चलता है, ठीक है। सो जनरली हमारे पास जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनिक में तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग, पाई और सिग्मा। आउट ऑफ दैट नॉन बॉन्डिंग इज लूजली हेल्ड, उसके बाद पाई की बारी आती है, और उसके बाद क्या आता है आपका सिग्मा। सो दैट मीन्स बाय यूजिंग दैट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट द मॉलिक्यूल व्हाट टाइप द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। नाउ आपके पास किस टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, बराबर है, क्योंकि किसको कितनी एनर्जी लगेगी। क्या होता है कि ये ट्रांजिशन जो है ये स्टडी क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड द बाइंडिंग एनर्जी। तो किस ट्रांजिशन कैसे ट्रांजिशन हो रहा है उसकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, तो उस हिसाब से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किस टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
वो हम आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। और उससे क्या पता चलता है, जैसे हमने बोला कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बार बार निकालते हैं, मतलब क्या होता है कि वी कैन डिफरेंशिएट सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, सैचुरेटेड वर्सेस किसको, अनसैचुरेटेड। दोनों की क्या हो जाएंगे, आपके ट्रांजिशन अलग अलग देखने को मिलेंगे। लेट्स से अगर मैंने आइसो क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया आइसो ब्यूटेन ले लिया, उसके बाद मैंने यहीं पे अगर मैंने आइसो ब्यूटीन लगा दिया और यहीं पे मैंने अगर कार्बोनिल लगा दिया, एसीटोन, तीनों मॉलिक्यूल देखो अलग अलग है। पहले वाले मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशंस मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में पाई पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पाई टू पाई ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज सिग्मा टू सिग्मा भी देखने को मिलेगा। बट थर्ड मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यानी कि नॉन बॉन्डिंग टू कौन सा आपका एन टू पाई स्टार भी आपको मिल रहा है, एन टू सिग्मा स्टार भी आपको मिलता है, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी मिलता है, पाई टू पाई स्टार भी मिलता है, देखो। सो इसका मतलब हर ट्रांजिशन की एनर्जी अपनी अपनी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। सो बेस्ड ऑन दैट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी gives a lot of information regarding the degree of unsaturation. ओके okay? अब डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा भी होती है, जैसे एग्जांपल हमने बीटा कैरोटीन सबने देखा है, सबने देखा है बीटा कैरोटीन में, कैरोटीन आपको पता है ना पिगमेंट है कैरोटीन एक, और वो किसकी वजह से वो कलर दिखाता है, सो और उसकी वेवलेंथ देखो कितनी है 452 ना। हमने बोला है कि 400 से आगे जो जाते हैं 400 से 800 ये हम आसानी से हमारी आंखों से देख सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अपीयर्ड इन द विजिबल रीजन, बराबर। तो विजिबल रीजन में है। अब ब्यूटाडाइन कोई देख सकता है क्या, ब्यूटाडाइन का कलर कोई होता ही नहीं है, ब्यूटाडाइन लुक एट द कलर ऑफ द ब्यूटाडाइन ना। इथिलीन देखो 175 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है, उसको हम देख नहीं सकते, बट कैरोटीन को हमने देखा है, कैरोटीन का कलर हमको पता है, राइट। तो क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने सारे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड सारे के सारे कैसे कॉन्जुगेशन में, दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्जुगेशन, ओके। और ऐसे एग्जांपल हम आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाउ अगेन देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा रीजन हमारा लिया हमने, दैट इज कॉल्ड एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन। तो इसमें क्या आएगा आपका, नाउ लुक एट दिस वन, यूवी का जो स्पेक्ट्रम है वो इतना सा है, छोटा सा एकदम, मतलब ये छोटा सा यूवी है और ये छोटा सा जो है ये विजिबल है, ठीक है। इसके पहले आपका वैक्यूम आएगा, फिर इधर एक्सरे आएगा और इधर आपका आईआर है। बट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे आईआर है, ये हमारा रीजन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अल्ट्रावायलेट जैसे हमने बोल दिया, सो इट इज व्हाट 200 टू 400 नैनोमीटर। और अगर हम विजिबल की बात करते हैं, सो विजिबल जो है वो जाता है आपका कितना 400 टू 800 नैनोमीटर में। और यहाँ पे कुछ आपको जो इक्वेशन है वो बना के दिए हुए हैं, ठीक है। और एज यूजुअल अगर हम ऐसे निकालते हैं तो E इज इक्वल टू हमको पता है एच न्यू है, दैट इज व्हाट एच सी बाई लैम्बडा, ऐसे भी कर सकते, दैट मींस द एनर्जी एंड वेवलेंथ आर अपोजिट। अब विजिबल कैसा है, ये है विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि जो 400 से आगे गया, सो बेसिकली ये स्टार्ट होता है 380 से और एंड होता है 780 पे, जो एकदम डार्क रेड होता है। सो हमारे पास क्या है, वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ओके, और डार्क रेड है, या रेड ही उसको पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है। उस हिसाब से हमारे पास एक विगबियर नाम का भी कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द कलर व्हील। जब व्हाइट लाइट हम किसी प्रिज्म में पास करते हैं तो तब वहां पे लाइट का डिस्पर्शन होता है, और अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग एंगल में जो है वो लाइट आपका वहां से डिस्पर्स होता है। एंड एट द राइट साइड देयर इज एन द कलर व्हील इज देयर नाउ, ओके, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल आपका 380 से जो है वो 780 तक आपका पूरा जाता है। अब कुछ हमारे पास ऐसे नेचुरल पिगमेंट है जो कलर दिखते हैं, कई सारे नेचुरल कंपाउंड है जो ऑलरेडी कलर्ड है, तो कलर है इसका मतलब उनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, या कुछ तो भी ऐसा प्रेजेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेट्स एग्जांपल एलिसहेरिन, आपको सबको पता है एलिसहेरिन क्या है, एलिसहेरिन एनीबॉडी नो अबाउट एलिसहेरिन, एक डाई है वो, ठीक है, एलिसहेरिन इज ए डाई, दिस इज आल्सो द डाई, ओके, ये भी एक डाई है। इंडिगो आपको पता है, इंडिगो इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डाई, ओके। तो इनमें देखो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन से क्या होता है, एक्साइटेशन जल्दी हो जाता है, और जिसकी वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देन वी हैव अनदर एग्जांपल इज प्रोटीन, ओके, दैट इज आल्सो द पिगमेंट। देन बीटा कैरोटीन भी आपके पास है जो कैरोट्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एक बार इसका अपन देखते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास जो लैब में जो होता है वो सिंगल बीम के इंस्ट्रूमेंट है, और कहीं जगह पे डबल बीम का इंस्ट्रूमेंट है। डबल बीम का मतलब जहाँ पे दो बीम यूज किए जाते हैं। सो एक सोर्स हमने यूज किया है पहले, लाइट सोर्स, ओके, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग एंगल में होती है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्लीट लगा के एक ही डायरेक्शन में उसको पास करते हैं। देन यहाँ पे एक मिरर टाइप सिस्टम रखा हुआ है जिसका नाम है रोटेटिंग डिस्क। तो वो अलग अलग क्या होता है, वहाँ पे रोटेशन होता है उसका, जब उस एक स्पेसिफिक एरिया उसका ऐसा है वो जो पूरा ब्लैंक होता है, एक स्पेसिफिक एरिया मिरर के जैसा होता है जो क्या करता है वहां से उसको और कंटिन्यूली वो घूमते रहते डिस्क, ठीक है। और जैसे वो उसके ऊपर इंटरेक्ट होता है, सो इट विल बी कन्वर्ट्स दैट रेडिएशन टू द मिरर, ठीक है। और देखो आप क्या है यहाँ पे डबल बीम में क्या होता है कि एट ए टाइम हम जो है वो दो
टाइप के इंटरेक्शन वहाँ पे करवाते हैं। मतलब एक रहता है आपका सैंपल सेल, जिसमें हम हमारा सैंपल रखते हैं यहाँ पे क्यूएट में, और एक होता है हमारा रेफरेंस, ठीक है, जिसके कंपेयर में हम उसको करते हैं, ठीक है। एंड दोनों को फिर बाद में डिटेक्ट किया जाता है थ्रू द वाट डिटेक्टर, एंड देन यू विल गेट द स्पेक्ट्रम। तो दिस इज वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली फॉर द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें लाइट सोर्स क्या यूज होता है वो हमने देखा है कि यूवी अगर होगा तो हम हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम लैंप लेते हैं, और अगर हमारे पास मान लेते हैं कि विजिबल है तो हम टंगस्टन या हेलोजन लैंप वहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ सोर्स है जो 200 से 800 तक काम में आते हैं। इन जनरली हमारे पास हमने बोला है कि अल्ट्रावायलेट के लिए आप ड्यूटेरियम लैंप ले लो, और टंगस्टन हेलोजन लैंप जो है वो विजिबल के लिए ले लो, ठीक है। अब ये ग्रिटिंग या फिर स्लीट का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, यहाँ पे इसका फोटो भी दिया हुआ है, ऐसा है, ये देखो, है ना। लाइट सोर्स जब जाता है आपका डिफ्रैक्टिंग ग्रिटिंग के बाद, और आगे स्लीट है, तो ये क्या करता है बेसिकली, वो कलर कंपोनेंट को जो है एक ही डायरेक्शन में आपको सेंड करता है, ठीक है। या ग्रेटिंग का काम क्या है कि जो लाइट आपकी सोर्स से आ रही है उसको स्प्लिट करना। जैसे प्रिज्म, प्रिज्म का काम है ना, प्रिज्म हमने देखा है अभी कि एक लाइट जैसे डालते हैं तो उसमें से कई सारे आपको क्या मिलते हैं, कई सारे हमको यहाँ पे डिफ्रैक्शन हमको मिलते हैं। सो डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग का नाम यही होता है, ग्रेटिंग का नाम, कि बेसिकली जो लाइट हम सोर्स से आता है उसको अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करना, और उसमें से फिर एक कोई स्पेसिफिक लाइट हम वहाँ पे यूज करते हैं। और स्लीट क्या करता है कि जितने वहां से आ रहे हैं उसमें से किसी एक को पास करना, ठीक है, यूजिंग दैट द डिस्क। अब उसके बाद है तुम्हारा रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क कैसा है कि जिसमें अलग अलग वहां पे चेंबर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको डिफरेंट सेगमेंट अपन आप उसको बोलते हैं। और देखो ऐसा है, इसमें से क्या है, एक ब्लैक सेक्शन जो है, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट सेक्शन है, और एक है आपका मिरर सेक्शन। ब्लैक सेक्शन में कुछ नहीं होता है, मतलब अगर रेडिएशन आती है तो पास नहीं होता है, बट अगर ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट तो उसमें से डायरेक्ट पास हो जाएगी। मिरर है मतलब उसमें से रिफ्लेक्ट होंगे। तो जनरली जब ट्रांसपेरेंट ऐसे घूमेगा वो, और ये कंटिन्यू क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। तो जैसे वो ट्रांसपेरेंट सेक्शन आ जाएगा, सो देन लाइट विल बी पास, जो लाइट आपका स्लिट से आया वो आ गया, क्या होगा, आपका पास होगा। Okay, so if light hits the mirror section, it bounces back to the mirror, and the reflected light meets the transparent section and the second disc and passes through it the detector. इसका मतलब देखो क्या है, जो ट्रांसपेरेंट सेक्शन पे लाइट जैसे गिरी वो आगे जाती है, ओके, और जो मिरर पे गिरती है वो बैक बाउंस होकर काफी पीछे चले जाती है, रिफ्लेक्शन जिसको अपन बोलते हैं। सो लुक एट दिस वन नाउ, जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे गिरा और वो मिरर के थ्रू से वो वापस चला गया, कहाँ पे, रेफरेंस हो आपका सैंपल हो, ठीक है। सो देन इफ लाइट इट हिट्स ऑन टू द ट्रांसपेरेंट सेक्शन, it will pass through and bounce by a mirror onto the second rotating disc. Light meets the mirror section of the second disc and bounces onto the detector. So overall क्या है, जो आपका रोटेटिंग डिस्क है ये काम क्या कर रहा है, जो स्लीट से लाइट आता है उसको आगे सैंपल या रेफरेंस की तक पहुंचाता है उसका, ठीक है। बट उसमें दो अलग अलग सेक्शन है, एक मिरर सेक्शन होता है जो रिफ्लेक्शन का काम करता है, और एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट सेक्शन जो डायरेक्टली उसको आगे पास करता है, ओके। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक स्पेसिफिक जो है मिरर वाला जो है वो रेफरेंस की तरफ जाता है, ट्रांसपेरेंट वाला जो है वो सैंपल की तरफ जाता है। समझे क्या, दो चीजें हैं यहाँ पे। इन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द रोटेटिंग डिस्क का जो कौन सा सेगमेंट है, मिरर सेक्शन जो है आपका, मिरर सेगमेंट जो है उसका काम है लाइट को रेफरेंस तक पहुंचाना, और जो ट्रांसपेरेंट सेक्शन है वो आपका उसको कहाँ पे पहुंचाता है, सैंपल तक पहुंचा के आगे उसको डिटेक्टर पे लेके जाता है ऐसे। अब सैंपल कैसे रखा जाता है, तो हमको क्यूवेट पता है, क्यूवेट ऐसे एक ग्लास की क्यूवेट बनी होती है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप की है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द कॉर्ड्स। और उसमें उसमें भी जो हम सैंपल डालते हैं उसमें भी क्या होता है, एक साइड में उसका पूरा एरिया ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरे साइड से जो है वो थोड़ा सा रफ एरिया होता है, जिस साइड से ट्रांसपेरेंट है उसी साइड से आपका रेडिएशन वहां से आते हैं उसको, ठीक है। एंड डिटेक्टर का काम क्या होता है बेसिकली कि जो लाइट आपका उधर से आता है उसको कन्वर्ट करना होता है करंट में, ठीक है। और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी लाइट की उतना ज्यादा करंट आपको मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूसरे के साथ में, और फिर उसके हिसाब से अपन एब्जॉर्बेंस उसका निकालते हैं। एंड फाइनली द डिटेक्टर सेंड टू द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर एंड यू विल गेट द ग्राफ नाउ। और ग्राफ कैसे निकालते हैं हम, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी वेव की, और एक प्रॉपर्टी होती है आपका फिजिकल जो हो रहा है वहां पे चेंज, वो फिजिकल चेंज क्या हो रहा है, एब्जॉर्बेंस, और वेव प्रॉपर्टी क्या है आपकी, वेवलेंथ। सो एब्जॉर्बेंस वर्सेस क्या निकालते हैं अपन, वेवलेंथ हम उसमें निकालते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लैम्बडा मैक्सिमम। एंड देयर इज एन इक्वेशन ए दैट इज एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ I0 बाय आई। I0 का मतलब होता है जो इंटेंसिटी आपकी क्या थी, पास की गई रेफरेंस के थ्रू, और आई का मतलब होता है जो इंटेंसिटी लाइट है किसकी, जो सैंपल के थ्रू पास की गई। मेन प्रिंसिपल जो है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पीछे वो जाता है आपका लैम्बर्ट बीएस लॉ के हिसाब से, यानी कि इप्सिलॉन इंटू एल इंटू सी।
सो एप्सिलॉन का मतलब होता है जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको अपन एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मतलब एक पर्टिकुलर मोल का सॉल्यूशन जो हमने लिया है उस सॉल्यूशन पे कितना एब्जॉर्प्शन रहेगा वो। एल का मतलब होता है जो आपकी लेंथ थी, जो सेंटीमीटर में गिनते हैं, और सी माने होता है कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा जाता है ये आपका लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ठीक है। और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कैसे निकाली जाती है, 1 मोल सॉल्यूशन की निकाली जाती है जब आपका पाथ लेंथ कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर रहेगा, तब की बात है। ओके, so here A, that is absorbance, is equal to log to the base 10 of I0 by I and is equal to the epsilon L into C naught। और जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो हम किसमें निकालते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एट मैक्सिमम, या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ई मैक्स बोलते हैं। जैसे लैम्बडा मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। और जो ई मैक्स जो है ये बेसिकली क्या होता होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिविटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कितनी, वो मतलब बेसिकली आपका होता है ई मैक्स। नेक्स्ट है आपका, अब ये जो भी कुछ करना है आपको, ये आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके समझना है पहली बात। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसा वाला मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ सिग्मा और पाई प्रेजेंट है, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे प्रेजेंट है। इन तीनों की केमिस्ट्री आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके समझना है। सो अब इसके पहले हमको क्या करना है, पहले आपको मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल की डायग्राम जो हमने बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े थे वो हमको अभी यहाँ पे निकालनी। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है, जिन मॉलिक्यूल में तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन कौन से, सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी रहेगा, पाई है तो पाई स्टार भी रहेगा, और एन है दैट इज नॉन बॉन्डिंग। ऐसे अलग अलग 5 एनर्जी लेवल हमारे पास प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिनको क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि ये किसका है, ये एक मॉलिक्यूल का है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद कौन होता है, पाई, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई, पाई स्टार, और उसके बाद सबसे सिग्मा स्टार। और ये एनर्जी दी है लेफ्ट साइड में एरो पे, ठीक है। अब ट्रांजिशन कहां से होते हैं, अब ट्रांजिशन जनरली होते हैं विद इन द सेम ऑर्बिटल, मतलब सिग्मा है तो उसका सिग्मा ही ढूंढेगा वो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों की सिमेट्री जो है ऑर्बिटल की वो सेम होती है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से आपका उसी के ऑर्बिटल में जाता है। देखो ट्रांजिशन जब भी करेंगे हम, तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। एक, सबसे पहले कि वो उसी के साथ ट्रांजिशन हो, दूसरा जो भी ट्रांजिशन हम करेंगे उस ट्रांजिशन की एनर्जी कम लगनी चाहिए सबसे। तो सिग्मा टू सिग्मा एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, देखो कितनी ज्यादा है, सिग्मा टू सिग्मा, दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, दोनों एक दूसरे से काफी दूर है। अब देखते हैं अपन कि आगे क्या होगा। ओके, सो बेसिकली जो है हर अलग अलग कंपाउंड में इनका जो गैप है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होगा, ये कितने टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है ये हर मॉलिक्यूल में क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, ठीक है। सो और कोई भी 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस मतलब क्या होता है, डेल ई होता है, और उतना ही लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज एच न्यू। कोई भी 2 का ले लो, अगर मान लेते किसी ने सिग्मा टू सिग्मा ले लिया तो इतना आएगा, मतलब मान लेते मैंने इसको लिखा E2 और इसको लिखा E1, ऐसे, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, उतना लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा और एच सी न्यू बार, वो भी कर सकते हैं उसके यहाँ पे, ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड पे जब हम लाइट पास करते हैं तो क्या होता है, वो तो एब्जॉर्ब करता है, ग्राउंड स्टेट वाला एब्जॉर्ब करता है, और कहाँ जाएगा आपका, एक साइड में जाएगा, मतलब नॉन बॉन्डिंग में जाएगा। सो बेसिकली ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, ट्रांजिशन आइदर फ्रॉम बॉन्डिंग से होता है या तो फिर नॉन बॉन्डिंग से होता है। कहाँ पे होता है, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, ऐसे टाइप का ट्रांजिशन जनरली होता है। कब, जब हम यूवी लाइट उसके ऊपर पास करते हैं तब। when we pass the UV light onto the compound, what happen, there is a transition is going to take place। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है। और ये जो एनर्जी गैप है ये टोटली डिपेंड होता है, रेजोनेंस का कांसेप्ट है वापस, मतलब जितना गैप है उतना ही वो एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं कि मान लेते कि डेली का गैप अगर 50 है तो 25 एब्जॉर्ब करेगा, इट शुड आल्सो एब्जॉर्ब द 50 नाउ। ओके, सो दैट इज डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसको प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं, एंड दैट इज आल्सो मॉडिफाइड टू एच सी बाय लैम्बडा, वेयर हम इसको हम c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू वी भी कर सकते हैं, जिसमें c होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा मतलब हो गया आपका वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी अपन स्पीड ऑफ लाइट उसको बोल सकते हैं। अब हमको देखना है कि व्हाट इज दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल, ये वाला जो होता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने के लिए कोई और सोर्स नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, यूवी, दैट मींस द यूवी लाइट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक्साइट अगर करना है आपको तो आईआर या फिर एनएमआर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, वी ओनली नीड ओनली द यूवी। सो यूवी लगाओ, द सैंपल द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रमोटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल।
तो बेसिकली देखो, लुक एट दिस एमओ डायग्राम, जहां पे आपका सिग्मा और पाई ये दोनों बॉन्डिंग वाले हैं, सिग्मा और पाई स्टार ये एंटी बॉन्डिंग है, और अकेला होता है आपका नॉन बॉन्डिंग। नाउ इन जनरल देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आर गोइंग टू बी टेक्स प्लेस इन द मॉलिक्यूल, जिनमें ये तीनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन कौन से? नॉन बॉन्डिंग, पाई और सिग्मा। सो जिन मॉलिक्यूल में मान लेते हैं हमने तीनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिया, तो जनरली हमारे पास 6 ट्रांजिशन हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन आउट ऑफ द 6 ट्रांजिशन ओनली फ्यू आर अपीयर्ड इन द स्पेक्ट्रम। अगर हमने एसीटोन की बात की है तो एसीटोन में टोटल तीनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग भी है, पाई भी है, सिग्मा भी है। बट क्वेश्चन क्या है कि खाली 2 ही ट्रांजिशन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन है तो 6। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजिशन है वो सिलेक्शन रूल को ओबे करने चाहिए। इसका मतलब इस टेक्निक में भी आपको क्या दिया है? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बताता है कि सबसे पहला कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है, जैसा उसका स्पिन है वैसा ही वापस होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा स्पिन है, तो एक्साइट होने के बाद वैसा के वैसा होना, दैट इज कॉल्ड एज डेल एस इज इक्वल टू 0। मतलब स्पिन शुड बी रिटेन। स्पिन क्या होना चाहिए? स्पिन शुड बी रिटेन। दिस इज द फर्स्ट सिलेक्शन रूल। ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि द गैप, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन शुड बी वेरी मच लेस। मतलब अगर आपका एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा, ठीक है, एनर्जी गैप अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए सिग्मा टू सिग्मा वाले आपको 100 मीटर के आसपास ही मिलेंगे, 100 के आसपास ही मिलेंगे, जो कि दिखते भी नहीं है। ओके। सो अगर आपका एनर्जी गैप अगर ज्यादा है, जैसे सिग्मा टू सिग्मा का एनर्जी गैप क्या है? बहुत ज्यादा, तो आपको जो है आपकी आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और साइड बाय साइड आपको वेवलेंथ भी सबसे कम वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है। तो जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा एनर्जी उसको लगती है, और उतनी कम वेवलेंथ वहां पे क्या हो जाएगी? लगेगी वहां। इसलिए सारे के सारे ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते हैं, और इसी ट्रांजिशन को अगर हमको देखना है तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, दैट रेस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज ए सिलेक्शन रूल। फिर सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? देखो ये सारे ट्रांजिशन हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही है जो होते हैं। ठीक है। एक सबसे पहला, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसका मतलब डेल एस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला है आपका। दूसरा क्या है? द ट्रांजिशन बिटवीन द टू ऑर्बिटल शुड बी सिमेट्री अलाउड। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ऑर्बिटल की सिमेट्री बहुत जरूरी होती है, वो होना जरूरी है वहां। सो सिमेट्री शुड बी द सेम नाउ। ठीक है। तो ऐसे ट्रांजिशंस को जनरली जो ओबे करते हैं सिलेक्शन रूल 1 और सिलेक्शन रूल 2 को, जो ओबे करता है उसको हम क्या बोलेंगे? अलाउड। और जो नहीं करता है वो भी, उसको हम बोलेंगे फॉरबिडन। सो जो अलाउड है वो अपीयर होगा स्पेक्ट्रम में, जो फॉरबिडन है वो स्पेक्ट्रम में अपीयर नहीं होगा। और मोस्ट कॉमन फॉरबिडन यहाँ पे दिखा है कौन? n2 पाई स्टार, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि देखो अगर मान लेते कि n का ऑर्बिटल अगर ऐसा है तो पाई का ऑर्बिटल ऐसा होता है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक ऑर्बिटल कैसा है, एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर, पैरेलल है क्या? वो नहीं है। तो इसलिए n2 पाई स्टार जनरली जो है ये फॉरबिडन का एग्जांपल है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रांजिशंस क्या है। लेट्स एग्जांपल पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे ओलेफिन्स में जनरली ये टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिलता है, सारे पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स। एक और ट्रांजिशन जो है जो सेकंड नंबर पे जाता है, दैट इज n2 पाई स्टार। अब n2 पाई स्टार मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर है और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ऑल कार्बोनिल्स, राइट। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है जहां पे n2 सिग्मा स्टार बोला है। n2 सिग्मा स्टार का मतलब ऐसे वाले मॉलिक्यूल जिनमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, क्योंकि हेटेरो एटम में क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो देखो कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल होंगे फिर हमारे पास? पहला वाला ओलेफिन, दूसरा वाला आपका कार्बोन, और तीसरा वाला जो है वो कौन है? ठीक है। और अल्केन में कभी कभी ये भी दिखाता है, क्योंकि अल्केन के साथ आपका अल्किल हाइड भी आ जाता है उधर। सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन सबसे कम है, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा की जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा होती है, समझे। और ज्यादा एनर्जी है इसका मतलब क्या हो गया? मोर एनर्जी लेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि लेस वेवलेंथ, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं आपके सामने कि लेट्स एग्जांपल, सो वी हैव मिथानॉल एट 177, हेक्सेनथायोल मतलब सल्फर वाला 224, ट्राई मिथाइल अमीन 199, देन एन मिथिल पाइपरिडीन। ये सब हेटेरो एटम वाले हैं लगे हुए, इन वजह से जो है इनकी वेवलेंथ जो है वो 200 के आसपास लगभग आती है। ठीक है।
अब यहाँ पे ये आपका अल्कीन है। ये अल्कीन में किस टाइप का ट्रांजिशन होता है? पाई टू पाई स्टार, और जिनकी वेवलेंथ अराउंड कितनी है? 170 टू 190 है। ठीक है, मतलब 200 के अंदर ही, मतलब ये कहाँ जाएगा? 200 के अंदर, मतलब अल्ट्रावायलेट में। ठीक है, कौन सा अल्ट्रावायलेट? वैक्यूम। और वैक्यूम वाला तो कोई भी देख नहीं सकता है, समझे? तो इसलिए ऐसे ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, सो कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो है, या फिर आप इनको कंपेयर कर सकते हैं आप। रीजन कितना है आपका अल्कीन का? 170 से 190 अल्कीन, और 170 के नीचे में कौन जाता है? आपका अल्केन जाता है। ठीक है, कंसिडर करते हैं कि आपका 150 के आसपास कौन है? अल्केन है। 170 के 190 तक आपका अल्कीन है। लेकिन ये कुछ ऐसे एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिए हैं जिनका 200 के ऊपर दिया, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है अल्कीन की? 170 टू 190, बट ड्यू टू द कॉन्जुगेशन द वैल्यू गोइंग टू बी डिक्रीज, वैल्यू गोइंग टू बी इंक्रीज। इसका मतलब इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन क्या बढ़ेगा आपका? लैम्बडा मैक्स, यानी कि जो वेवलेंथ है वो भी क्या होता है आपका? बढ़ता है, राइट? सो पहला एग्जांपल देखो, इथिलीन का देखो, इथिलीन जाता है 175 पे, लेकिन अगर मैं और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाता हूँ तो इसका जाता है 217 पे। अब देखो 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2,3 डाइमिथाइल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो इसका कितना आ गया? इसका 226 आ गया। 135 हेक्साट्राइन, मतलब ये वाला एग्जांपल, इसका कितना है? देखो 253, 263, 274 अलग अलग सॉल्वेंट में। 13 साइक्लोहेक्साडाइन, 13 का मतलब कॉन्जुगेशन में है ये, 13 ऐसे 256 है, और 13 साइक्लोपेंटाडाइन 239 है। So basically with increase in the conjugation what the lambda max increase, but what is the reason behind that? तो ये समझना जरूरी है पहले। ठीक है, चलो उसको भी अपन समझ। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम कॉन्जुगेशन बढ़ता है, तो जैसे आप इथिलीन में इतना गैप है, सपोज मान लेते हैं गैप, तो अगर ब्यूटाडाइन ले लिया आपने तो गैप ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो गैप है हो जाता है, और इसीलिए एनर्जी कम लगती है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। इसलिए इथिलीन में देखो 175 था, यहाँ पे 217 हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कार्बोनिल। कार्बोनिल ऐसा मॉलिक्यूल है जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग सिग्मा है, और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो लुक एट एग्जांपल ऑफ दिस कार्बोनिल नाउ। और इसमें दो टाइप के मेन ट्रांजिशन आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपका पाई टू पाई स्टार 190 पे, और एन टू पाई स्टार मिलता है 280 पे। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पहले हमने अभी बताया कि एन टू पाई स्टार सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल किसका है? किसका एग्जाम्पल ये? फॉरबिडन। पाई टू पाई स्टार क्यों अलाउड होता है? क्योंकि पाई और पाई दोनों की सिमेट्री क्या होती है? मैच होती है, दोनों जिससे ऐसे होते हैं। नाउ लुक एट द केमिस्ट्री ऑफ पाई एंड पाई टू पाई स्टार, लुक एट दिस, ऐसे होता है। तो ट्रांजिशन करने में देर नहीं लगती है। लेकिन आप एन टू पाई स्टार की बात अगर करते हैं तो ये दोनों ऐसे होते हैं। अब कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा एक दूसरे के अंदर, है ना? तो सिमेट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट कार्बोनिल में दो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलते हैं, बाकी कुछ दिखता नहीं। एक दिखता है आपको, कौन? पाई टू पाई स्टार 190 पे, और एन टू पाई स्टार 280 पे। फिर क्वेश्चन आता है कि एन टू पाई स्टार इतना आगे क्यों चला गया? क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपका? देख, दो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलते हैं, एक आपको मिलता है ऐसे वाला, और एक आपको मिलता है ऐसे वाला। ये कौन है आपका? एब्जॉर्बेंस है, और ये कौन है आपका? वेवलेंथ है। इसका कितना गैप है? बहुत ज्यादा। इसका कितना है? 190 है। अरे ज्यादा का नहीं पूछ रहा हूं मैं। और ये कितना है? 280। क्वेश्चन ये है कि पहला जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, इनमें क्या फर्क दिखता है आपको? लेकिन पाई टू पाई स्टार की वेवलेंथ कम है, एन टू पाई स्टार की वेवलेंथ ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है कि पाई और पाई स्टार दोनों के जो ऑर्बिटल है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इलेक्ट्रॉन को देना पाई से पाई टू पाई स्टार से ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए इट इज ए सिमेट्री अलाउड टाइप ऑफ ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार क्या है? और हमने पहले बताया कि जो अलाउ है वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एन टू पाई स्टार की इंटेंसिटी इतनी कम क्यों है? फिर यहाँ पे सवाल आता है कि इट इज ए सिमेट्री फॉरबिडन। सिमेट्री ये क्या है? फिर फॉरबिडन है तो स्पेक्ट्रम में आना नहीं चाहिए था ना। फिर क्वेश्चन ये है कि आया क्यों? अगर आप दोनों ट्रांजिशन की एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी किसको ज्यादा लगती है? को ज्यादा लगेगी, किसके कंपेयर में? हम इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो किसको ज्यादा लगेगी वेवलेंथ? हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका।
Why pi 2 pi star is the most intense peak? Because it is symmetry allowed. Why it is have the lowest wavelength? Why it is only 190? Because it is energetic transition. क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगती है पाई से पाई, क्योंकि उसको एक क्रॉस है, बैरियर क्रॉस करके जाना होता है, गैप ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाए। तो पाई टू पाई को एनर्जी ज्यादा लगती है तो वेवलेंथ कम होगी। बट n टू पाई में ऐसा क्या है जिसकी इंटेंसिटी कम हो गई बट वेवलेंथ ज्यादा है? इंटेंसिटी कम इसलिए होगी क्योंकि वो सिमेट्री फॉरबिडन है। तो वेवलेंथ ज्यादा क्यों होगी? फिर वेवलेंथ ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि एनर्जी बहुत कम लगती है उसको, वो आसानी से हो जाता है, समझे? ये इस वजह से ये सारा खेल चला आपका। देखो, सो नेक्स्ट टू दैट, ओके, नाउ एवरीथिंग इज देयर। आप पढ़ सकते हैं इसको, कार्बोनिल, और इट मे बी ड्यू टू द ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ले सकते हैं वहां पे। और ऐसे मॉलिक्यूल में n2 पाई स्टार और pi 2 पाई स्टार ऐसे दो ट्रांजिशन आपके होते हैं। ओके, एक फॉरबिडन है उसमें से जिसका नाम है आपका कौन, n2 पाई स्टार, और एक अलाउड है जिसका नाम है आपका pi 2 पाई स्टार। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आपके सामने दिए। पहला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसको अपन इथीन बोलते हैं, जिनमें एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा आपका pi 2 पाई स्टार जो एब्जॉर्ब करता है 165 पे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नियर अबाउट 173 175 के आसपास जाता है, जिसमें भी सेम एग्जांपल है आपका pi 2 पाई स्टार। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें दो टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, n2 पाई स्टार pi 2 पाई स्टार। आउट ऑफ दैट n2 पाई स्टार एब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ व्हाइल pi 2 पाई स्टार एट द लोअर वेवलेंथ। जो n डबल बॉन्ड है उसका देखो कितना दिया, n2 पाई स्टार है और pi 2 पाई स्टार। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बोनिल ग्रुप में सिर्फ अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था? ऑक्सीजन था। यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर होता है, कार्बन के पास कुछ नहीं था पहले, यहाँ पे लोन पेयर है और इस वजह से आपका ज्यादा वेवलेंथ होना चाहिए। ठीक है, 275 टू 200। अब हाइड्रोजन वाले देखो CX है, जैसे एग्जांपल Br या आयोडीन आप लेते हैं तो इनमें ट्रांजिशन होता है n2 सिग्मा स्टार जो जाते हैं 205 के आसपास, 255 205। ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ देयर रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशंस। अब जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं सो यू मस्ट लर्न सम काइंड ऑफ टर्म्स जिसको अपन कन्वेंशंस बोलते हैं। तो क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है, यानी कि क्रोमा मतलब होता है कलर और फोर मतलब बियरिंग, मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को रिस्पॉन्सिबल होने वाले ग्रुप। जैसे ओलेफिन है, डबल बॉन्ड O है, एस्टर्स है, अमाइड है, नाइट्रो ग्रुप है, दीज आर कॉल्ड एज ए क्रोमोफोर विच आर कॉल्ड एज ए कलर बियरिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें स्पेशली अनसैचुरेशन होता है वो वाले। ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या होता है कि कोई सैचुरेटेड ग्रुप है जो क्रोमोफोर को बाइंड हुआ है। देखो, क्रोमोफोर का मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, और ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नॉन बॉन्डिंग, ऐसा सैचुरेटेड ग्रुप जिनमें कौन से इलेक्ट्रॉन हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा ग्रुप? सैचुरेटेड ग्रुप, और जिसपे क्या होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका मतलब हेटेरोएटम। और वो उसको किसको अटैच होना चाहिए? क्रोमोफोर को, यानी कि जो पहले वाला एग्जांपल है उसको अटैच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमारे पास बेंजीन एज ए क्रोमोफोर है, लेकिन मैंने उसको OH लगा दिया तो अब पूरा OH जो है ये ऑक्सोक्रोम हो जाएगा। ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी और बढ़ा देता है, वेवलेंथ उसकी बढ़ा देता है, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है। तो आपको समझ में है ना ऑक्सोक्रोम में क्या डिफरेंस है, क्रोमोफोर में क्या डिफरेंस है? क्रोमोफोर मतलब जो अनसैचुरेटेड होता है बेसिकली, खत्म। अनसैचुरेटेड। ऑक्सोक्रोम मतलब जो सैचुरेटेड है जिसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट हो और वो क्रोमोफोर को अटैच हो, और जिसका काम है आइदर वो वेवलेंथ भी बढ़ा सकता, कम कर सकता, और इंटेंसिटी भी कम ज्यादा कर सकता। जैसे एग्जांपल आपके पास बेंजीन था पहले, बेंजीन का तुमने एनिलीन बना दिया, एनिलीन इज एन, लेकिन मैंने उसी एनिलीन को मैंने अभी प्रोटॉन दे दिया तो वो बन गया एनिलीनियम आयन। अब देखो बेंजीन, मान लेते बेंजीन अगर 175 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है तो एनिलीन एब्जॉर्ब करेगा 250 पे, मान लेते हैं। कितना बढ़ गया? देखो वेवलेंथ बढ़ गया, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। लेकिन अगर आपने उसको एनिलीनियम आयन अगर बना दिया तो आपके पास लोन पेयर नहीं रहा, तो ये और कम कर देता है ये। मतलब basically the oxochromes are the group which are responsible for altering the intensity as well as the absorption, and the groups are OH, NH2, OR, है ना, NR2, SH etc. फिर यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म्स हमारे पास सामने आती है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको अपन रेड शिफ्ट बोलते हैं। सो बाथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे वेवलेंथ बढ़ती है, जैसे बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन टू फिनॉल, ऐसे वाले जो लॉन्गर वेवलेंथ पे लेके जाके उसको रखता है। ठीक है, हिप्सो का मतलब क्या होना चाहिए? हिप्सो मींस रिवर्स टू दैट ऑफ बाथो, जिसको अपन ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, यानी कि
बेंजीन टू एनिलीन हो गया रेड शिफ्ट, है ना, और एनिलीन टू एनिलीन आयन, दैट इज कॉल्ड एज ए हिप्सो, मतलब रिवर्स करना, एक बढ़ा रहा है एक कम करना है। अब देखना है आपको हाइपरक्रोमिक का मतलब होता है कि जो इंटेंसिटी बढ़ाता है उसकी, और हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है कि जो इंटेंसिटी डिक्रीज करता है। ऐसे चार है देखो आपके पास जो इंपॉर्टेंट, जिनको हम लेते हैं यहाँ पे, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, अब लेट्स एग्जांपल, अगर मुझे इसको अगर ऐसा पैराग्राफ या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मुझे बताना है तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ? लेट्स एग्जांपल, यहाँ पे वेवलेंथ है और यहाँ पे इंटेंसिटी, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे निकालता हूँ यहाँ पे, तो ये इधर लेके जा रहा है या इधर लेके जा रहा है, मतलब वेवलेंथ एक जगह बढ़ रही है एक जगह कम हो रही है, और इसको अगर मैं ऐसे बताया तो इंटेंसिटी कहा जाए। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ बाथो, इसको हम बोलेंगे हिप्सो, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अपन? हाइपर, और इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपो। हो गया? ऐसा आप कर सकते हो। Now, which type of the solvents are used in this spectroscopy to record that UV spectrum? So, अब ऐसा है कि जो हमने सैंपल लिया है क्यूवेट में, उस क्यूवेट में सिर्फ हमारा सैंपल होना चाहिए, और सॉल्वेंट ऐसा डालो कि जो यूवी लाइट के साथ उसको एब्जॉर्ब भी ना करे। मतलब जनरली अपन हेक्सेन वगैरह यूज करते हैं ताकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम करते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट हमारे पास है जो यूवी के साथ ज्यादातर टेंशन का काम नहीं है हमारे पास, राइट। सो क्योंकि सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ओके। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने सॉल्वेंट ले लिया जो यूवी लाइट से इंटरेक्ट हो रहा है, वो सारा का सारा लाइट वही खा लेगा ना, उसी के साथ ही इंटरेक्शन हो जाएगी, बचेगा क्या फिर? थोड़ा बहुत लाइट जो होगा वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट होगा, मतलब कम ट्रांजिशन वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। देखो ऐसी गड़बड़ होती है। फिर इथेनॉल ले लिया तुमने, इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट, तो उसका पीक कितना बड़ा है, आइसोऑक्टेन का पीक कितना छोटा है, ओके, ऐसा होता है। सो जनरली अपन क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, एंड यू विल गेट द फाइन स्ट्रक्चर। और अगर हमने पोलर ले लिया तो गड़बड़ होती है, ओके। सो पोलर सॉल्वेंट अगर ले लिया आपने, सो इट विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फाइन स्ट्रक्चर विल बी डिसअपियर। और यहाँ पे आपको फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहां पे अपन नॉन पोलर का सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब सॉल्वेंट इफेक्ट भी आपको समझ में आना चाहिए कि जनरली सॉल्वेंट इफेक्ट में क्या होता है कि जो पोजीशन है इंटेंसिटी की वो बढ़ती है आपकी आगे पीछे, ठीक है। अब इसका इसका यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जैसे कॉन्जुगेटेड डाइन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या हो सकते हैं, कम सॉल्वेंट इफेक्ट दिखाते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बट अगर आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स लिया है तो ये क्या करते हैं, ये वेरिएशन दिखाते हैं आपके, आप चाहे उसमें नॉन पोलर ले लो या पोलर ले लो। उसके अपन एग्जांपल देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स एग्जांपल, अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपको दिए हैं, राइट, एक दो अलग अलग मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन आपको दिया है यहाँ पे। पहले वाला जो एग्जांपल है जहाँ पे पाई नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार ऐसे ट्रांजिशन है, दूसरे वाले में आपका सॉल्वेंट कैसा है देखो, दीज आर द सॉल्वेंट्स ना। सो अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो जनरली इनका सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सॉल्वेंट में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि इनमें इनमें क्या है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है ना, ये इनमें नहीं होता। बट अगर आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल लिया है तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या होता है कि पोलर हो या नॉन पोलर हो वो दोनों के साथ भी इंटरेक्शन वहां पे करता है, ठीक है। तो आप देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर है, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है। कहाँ है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन? ये वाला, हाँ देखो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट है। जैसे हमने सॉल्वेंट ले लिया, क्या होता है, पाई और पाई का गैप देखो कम हो गया, पहले से कंपेयर में गैप कम हो गया, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है। और एन टू पाई स्टार की जो है, यहाँ पे वेवलेंथ आपकी कम थी, अब क्या होगी, वेवलेंथ आपकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, कम था एनर्जी गैप, मतलब वेवलेंथ ज्यादा थी, यहाँ पे गैप बढ़ गया, वेवलेंथ आपकी कम हो गई। सो बेसिकली क्या होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल जो है ये ज्यादा अफेक्ट होते हैं आपके सॉल्वेंट के साथ, तो पाई टू पाई बढ़ता है और एन टू पाई कम होता है, ठीक है। अब इसका रीजन यहाँ पे दिया है, क्योंकि जो पाई स्टार ऑर्बिटल जो है ना ये स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी एनर्जी देखो यहाँ पे आना चाहिए था वो, उसकी एनर्जी कितनी कम हो गई, ठीक है। एंड द रीजन इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So due to the hydrogen bonding with your sample, okay, your pi to pi star or your pi star orbital gets stabilized now, यानी कि pi star orbital की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो वेवलेंथ है आपको जितनी लगनी चाहिए वो अल्टर होती है। So that is the reason and that's why the solvent is also very much important here. So इसलिए सॉल्वेंट ऐसा चाहिए कि जो लाइट के साथ कुछ इंटरेक्शन ना करे। अब देखना ये है कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे ओलेफिन 175 पे आ रहा था बट ब्यूटाडाइन 217 पे चला गया, ऐसा क्यों? सो कॉन्जुगेशन से क्या होता है, जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाती है। लेट्स से एग्जांपल, ये तो ठीक है आपके फिलहाल में तो रहने दो इसको। यहाँ पे देखो इथिलीन में E1 लेवल और E2 लेवल का गैप कितना है देखो, इसीलिए इसको लगता है नियर अबाउट 175।
ब्यूटाडाइन में देखो आपका होमो जो है 2 डबल बॉन्ड है ना आपके पास, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटाडाइन में आपके पास क्या है, दिस इज योर होमो नाउ, और होमो टू लूमो होता है, दिस इज व्हाट लूमो, तो गैप कम हो गया। हेक्साट्राइन में देखो कितने हैं आपके पास, हेक्साट्राइन में 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे, दिस इज योर होमो, दिस इज योर लूमो, और गैप कम हो गया। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन आपके बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, वो गैप कम हो रहा है, होमो लूमो का गैप कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है मतलब वेवलेंथ आपको क्या हो रही है, आपकी एनर्जी कम तो वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है। और इसीलिए जो बीटा कैरोटीन का एग्जांपल है वो 500 400 समथिंग कुछ तो भी जा रहा है, 500, वो इसलिए क्योंकि उसमें 11-12 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो यहाँ बीटा कैरोटीन कितने पे गया है, 470 पे गया, 165 से 217 हुआ, फिर 100 258 हुआ और 470 हुआ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डबल बॉन्ड, सो द एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है। ओके, सिस ट्रांस का भी है, आप वो भी देख सकते हैं कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस में। अब सिस एंड ट्रांस में क्या होता है कि सिस की जनरली ज्यादा क्यों होती है, यहाँ पे देखो, तो ट्रांस में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल जो है ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, दूर चले जाते हैं, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। बट सिस में क्या होता है, ये जो टर्मिनी जो है ना, टर्मिनी ये थोड़े नजदीक आ जाते हैं, और जिसकी वजह से इनका इंटरेक्शन जनरली ज्यादा होता है, और ट्रांस में देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सिस एंड ट्रांस को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ यूवी, तो यू कैन डिफरेंशिएट। तो 271 इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है, यहाँ पे कम है। ओके, सो यू कैन दिस वन। ओके, एंड इन सम केसेस व्हाट देयर इज एन क्राउडिंग इज आल्सो इशू ना, कई जगह पे क्या होता है क्राउडिंग की वजह से भी आपकी वेवलेंथ जो है कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो हम है वो जिसकी बात कर रहे हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट जो है ये भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, राइट। Yes.